Hi दोस्तों, let's see the next poem. The poem name is Cherry Tree. It is written by Ruskin Bond. Before start the poem, we must know about the Ruskin Bond. Ruskin Bond born in Kasoli, Himachal Pradesh in 1934. Ruskin Bond grew up in Jamnagar, Gujarat, Dehradun and Simla. His first novel, The Room on the Roof, written when he was 17, received the John Llewellyn Rhys Memorial Prize in 1957. Since then he has written over 100 short stories, essays and novels, including Vagrants in the Valley and A Flight of Pigeons, and more than 30 books for children. He has also published 2 volumes of autobiography. In 1992, he received the Sahitya Academy Award for English writing in India. He was awarded the Padma Shri in 1999. Ruskin Bond lives with his adopted family in Mussoorie, Uttarakhand. By way of innumerable novels, essays, short stories, and poems, the author Ruskin Bond has mapped out and peopled a unique literary landscape. Bond's sentences are moist with dew and the mountain air with charm, nostalgia, and underplayed humor. He is, means Ruskin Bond, our resident Wordsworth in India today. Friends, you must know about the poem Cherry Tree. In this poem, happiest moments has been explained by the Ruskin Bond. The poem Cherry Tree is about poet's ecstasy over a tree of his own which took 8 years to grow. Here the word ecstasy means joyful, Ati Anand. He is expressing his wonder and the ways of nature and how the cherry blossoms are fragile and quick to fall. The tree gives him immense joy when he can see the stars and the blue sky through dappled green trees. Friends, let's sing and get the sense of this poem. First line, 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि 8 years have passed, 8 साल गुजर गए, 8 साल हो गए हैं, since I placed my cherry seed in the grass, जब मैंने चेरी ट्री का बीज, चेरी का बीज बोया था. Must have a tree of my own, I said, and watered it once and went to bed. Here I want to explain, I want to say another thing, that this poem is brief explanation of the story The Cherry Tree, and in that story there is a main character is राकेश. जो एक स्टोरी लिखी गई थी द चेरी ट्री, उसमें राकेश नाम का एक कैरेक्टर था, एक छोटा बच्चा था जो अपने दादा के साथ रहता था और उसने भी चेरी के बीज को बोया था. अब यहाँ पे इस पोयम में
रस्किन बॉन्ड अपने आप को वो छोटा बच्चा समझ रहे हैं या उस उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस पोएम में, और बता रहे हैं कि 8 साल पहले मैंने चेरी का बीज लगाया था, ज़मीन में बोया था, और मैंने अपने आप से कहा था कि मेरा भी स्वयं का एक पौधा होना चाहिए, एक पेड़ होना चाहिए। मैंने उसको लगाया, उस बीज को ज़मीन में, और एक बार सिर्फ पानी दिया और जाकर बेड पर सो गया। एंड फॉरगट, बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग। एंड फॉरगेट, उसके बाद मैं एक बार पानी दिया, जाकर सो गया। एंड फॉरगेट, उसके बाद भूल गया। उस पौधे को लगाने के, उस बीज को लगाने के बाद वह भूल भी गया। बट चेरीज है, किंतु चेरी के पौधे के क्या अपना एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है बढ़ने का। जैसे नेचर में सभी का एक एक तरीका होता है बढ़ने का, वैसे उस चेरी के पौधे का भी है। दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग, यद्यपि किसी ने भी उसकी कोई केयरिंग नहीं की, उसकी किसी ने देखभाल नहीं की वो, कि वो बढ़े करके, ना ही उसको जानने की कोशिश की किसी ने। एंड सडनली डेट समर नियर द एंड ऑफ मे आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे। लेकिन अचानक मई के आखिर में, मई महीने के आखिर में, समर में, जो ग्रीष्म का महीना होता है, धूप का महीना होता है, धूप का सीज़न होता है गर्मी का, उसके मई के महीने के अंत में आई फाउंड, मैंने पाया, अ ट्री हैड कम टू स्टे, मैंने एक छोटा सा पौधा पाया। मतलब वो जो बीज लगाया था 8 साल बाद, उसमें उस पौधे, उस बीज का एक छोटा सा पौधा उगाया, जमीन को की ऊपरी परत तोड़कर एक छोटा सा पौधा उगाया। आई फाउंड, मैंने उसे पाया, अ ट्री हैड कम टू स्टे, ऐसा लगा मानो वो वहाँ पे रहने के लिए आया है। इट वॉज वेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड। वो पौधा बहुत छोटा था, मानो 5 साल के बच्चे के समान, और जो जंगली घास होती है जो जल्दी जल्दी बढ़ती है, उसमें वो कहीं खो सा गया था। मतलब वो छोटा सा पौधा था, आसपास हरी हरी घास थी जो उस छोटे से पौधे से लेंथ में ज़्यादा बड़ी थी, जिसके कारण वो पौधा खो गया था या छुप गया था। गॉड्स एट द लीव्स, द ग्रास कटर साइथ स्प्लिट इट अपार्ट एंड मानसून ब्लाइट। आप यहाँ पे देखिए, एक और नया कैरेक्टर आ गया अपने पास, गॉड्स, बकरियों ने उस चेरी ट्री के पत्ते खा लिए। एंड द ग्रास कटर्स साइथ, जो ग्रास कटर होता है घास काटने वाला, उसने क्या किया, साइथ करके एक वर्ड है, उसका मीनिंग मैं आपको शॉर्ट में हिंदी में बताता हूँ, उसको हसिया बोल सकते हैं। हसिया एक तो घास काटने वाले ने भी कुछ हिस्सा उसका काट लिया, उस पौधे का गलती से शायद काट दिया। उस लेसन में भी जो द चेरी ट्री करके स्टोरी है, उसमें भी जब राकेश जब घास बीज लगाता है, पौधा उगता है, तो उसमें भी इसका वर्णन किया गया है कि बकरी ने भी पत्तियां खा ली और ग्रास कटर ने भी हंसिए से उस पौधे को काट दिया आधे से ज़्यादा। उस समय राकेश के दादाजी उस घास काटने वाले को डांटते भी हैं, ये भी एक्सप्लेनेशन है उसमें। और स्प्लिट इट अपार्ट, काट कर अलग कर दिया। एंड मानसून ब्लाइट, यहाँ पर ब्लाइट करके एक वर्ड है, ये एक प्रकार की मानसूनी बरसात में या मानसून में होने वाली बीमारी है जो पौधों को होती है, जिसके कारण वो सूख जाते हैं। श्रिवल्ड एंड श्रिवल्ड द स्लैंडर स्टीम, इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो। अब क्या हुआ कि वो पौधा, यहाँ पे देखिए श्रिवल्ड एक वर्ड है, श्रिवल्ड मीन्स कॉन्ट्रैक्ट और विद into wrinkled, folded, rolled up, dried up state. In short,
वी कैन से डैट श्रिंक, श्रिंक यानी सिकुड़ना या सूखना। वो पौधा सूख गया था, थोड़ा सिकुड़ गया था। स्लेंडर मीन्स पतला होता है और स्टीम मीन्स होता है वृक्ष का तना। स्टेम मीन्स वृक्ष का तना होता है, ट्रंक। तो वो पौधा सिकुड़ गया, सूख गया, उसका तना पतला हो गया। घास, बकरी ने भी पत्तियां खा ली, ग्रास कटर ने भी उसको काट दिया आधे से ज़्यादा। इवन सो, फिर भी, इतने पर भी, इवन सो मीन्स इतने पर भी। नेक्स्ट स्प्रिंग, अगली बसंत ऋतु में, इसके बाद जो बसंत ऋतु आता है तब, आई वॉच 3 न्यू शॉट्स ग्रो। मैंने देखा, वो कवि कह रहे हैं कि मैंने देखा फिर से 3 नई छोटी शाखाएं उगाई थी उस पौधे को। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म्स इन फ्रेश फर्स लस्ट। वह यंग, तरुण, वह तरुण पौधा, वो छोटा पौधा स्ट्रगल, संघर्ष करता है, खुद को धक्का देता है ऊपर उठने के लिए, और उसकी आर्म्स यानी उसकी भुजाएं, इट्स आर्म्स, यहाँ पे उसकी भुजाएं अस्त्र शस्त्र भी है, यानी वो अपने आप को ढकेलता है ऊपर, उठाता है, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। और फ्रेश एयर के लिए, फ्रेश एयर के लिए तीव्र लालसा है उसमें उगने की। फॉर लाइट एंड एयर एंड द सन, तो प्रकाश पाने के लिए, हवा, ऑक्सीजन, हवा पाने के लिए और सूर्य की रोशनी देखने के लिए वो अपने आप को उठाता है, जीवित रखता है, संघर्ष करता है। आई कुड ओनली वेट एज वन। नेक्स्ट, फॉर लाइट एंड एयर द सन आई कुड ओनली वेट फॉर एज वन। तो मैं सिर्फ इंतज़ार कर सकता था, कवि बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं सिर्फ इंतज़ार कर सकता था और कुछ नहीं। Who watch wandering while time and the rain made a miracle from green growing pen। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि एक आश्चर्य हुआ, एक चमत्कार हुआ, पानी और समय और प्रकृति का चमत्कार, इसके कारण प्रकृति का एक चमत्कार हुआ कि वह जो पौधा है वो बड़ा हो गया। इतनी तकलीफ़ें, इतने दर्द झेलने के बावजूद भी एक चमत्कार हुआ, पानी और समय के व्यतीत होने से उसको समय मिला और वो बड़ा हो गया, बढ़ गया। आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर, स्पेंट अ सीजन इन कश्मीर। अब देखिए, अगले साल, आई वेंट नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल छुट्टियां मनाने के लिए, कुछ दिन, एक साल गुजारने के लिए कश्मीर में चला गया। कैम बैक थिनर रदर पुअर बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर। जब मैं वापस आया तो मैं थोड़ा सा पतला हो गया था, गरीब सा महसूस कर रहा था, किंतु जैसे ही मेरे दरवाजे पर मैंने उस चेरी ट्री को देखा तो मुझे लगा जैसे मैं धनवान हो गया, मैं अमीर हो गया। 6 feet high my own dark cherry and I could scarcely believe it a berry। तो मेरे घर के सामने डार्क चेरी का पौधा था जो लगभग 6 फीट का ऊंचा हो गया था, लेंथ उसकी 6 फीट थी, और मुश्किल से ही मुझे विश्वास हुआ कि ये मेरी रसबरी है, यानी मेरी मेरी बेरी है, रसबरी है, मेरी चेरी ट्री है मेरा। उसको कभी को विश्वास नहीं हो रहा था। रिपेंट एंड ज्वेल्ट इन द सन हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन। पका हुआ, रत्नों से जड़ा हुआ, सूर्यों के समान, और उसकी ब्रांच पर, उसकी शाखाओं पर चेरी, जो बेरी थी, पके हुए चेरी के फल थे, वो लटक रहे थे। And next year there were blossoms small, think fragile quick to fall। और अगले साल ब्लॉसम्स, ब्लॉसम का अर्थ होता है जो फूल होते हैं, नाजुक फूल जो बसंत के मौसम में उगाते हैं, हम भी देखते हैं। तो फ्रिंक फ्राजाइल, फ्राजाइल का मीनिंग होता है नाजुक, क्विक टू फॉल। तो ऐसे नाजुक पिंक कलर के ब्लॉसम्स लग गए थे उस शाखाओं पर, उस चेरी ट्री के ब्रांचेस पर। At the merest breath
the slippest breeze. I lay on the grass at ease. तो पूरी तरह से मीरेस्ट, पूरी तरह से शुद्ध, ऐसी उस पौधे के पास रहने से शुद्ध ऐसी हवा चल रही थी. स्लिपेस्ट ब्रिज, ब्रिज यानी था समीर, सुहावनी हवा, जिसके कारण सुकून भरी नींद लग जाए, ऐसी सुहावनी हवा उस पेड़ के आसपास थी. आई ले ऑन द ग्रास एट ईज. यहाँ पे ईज करके वर्ड है, EASE. यहाँ पे हम इसको इजी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईज. ईज हमने था आराम से. आई ले यानी लेटना. मैं लेट गया घास पर उस पौधे के नीचे आराम से. लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फ्लू. यहाँ पे देखिए, लुकिंग अप थ्रू लीव्स यानी जब मैं घास पर लेटा उस पौधे, उस पेड़ के नीचे, उस चेरी ट्री के नीचे, तब उस चेरी ट्री के पत्तियों के बीच में से मुझे वो आकाश, वो नीला आकाश दिख रहा था. और यहाँ पे देखिए, एट द फिंचेस. फिंचेस मीन्स होता है छोटी चिड़िया. हम लोग देखते हैं हमारे घर के आसपास खेत में एक छोटी चिड़िया होती है जो इधर उधर फटट कर वो फड़फड़ाती रहती है. एज दे फ्लू, तो वहाँ पे छोटी चिड़िया उड़ रही थी. एंड फ्लिटेड थ्रू द डैपल्ड ग्रीन. तो वो जो फिंचेस थी, वो जो चिड़िया थी, वो फ्लिट यानी फुदकना होता है, इधर उधर मंडराना या फुदकना. डैपल्ड मीन्स होता है रंग बिरंगी. वो रंग बिरंगी घास के आसपास वो चिड़िया फुदक रही थी इधर उधर. वाइल बीज इन एन एक्सटेसी ड्रैंक of nectar from each bloom and the sun sank. यहाँ पे जबकि, वाइल मीन्स जबकि, जो बीज यानी मधुमक्खियाँ, वो अति आनंद में, ड्रैंक मीन्स ड्रिंक का सेकंड फॉर्म, वो पराग पी रही थी. मीन्स पौधों के जो ब्लॉसम्स थे, वो जो फूल थे, उसमें से वो पराग निकाल रही थी मधुमक्खियाँ. ये दृश्य बड़ा मनोहर था, जो रस्किन बॉन्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू. ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम एंड द सन सैंक. तो हर उगे हुए, ब्लूम मीन्स उगना, उगे हुए फूल में से पराग निकाल रही थी मधुमक्खियाँ, और सूरज डूब रहा था. स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई एंड मून मॉथ्स एंड सिंगिंग क्रिकेट्स एंड आई. तो स्विफ्टली यानी तेजी से, स्विफ्टली सूरज तेजी से डूब रहा था. एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई, और आकाश में तारे उग आए थे. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सूरज डूब रहा था और तारे निकल आ रहे थे. इस प्रकार से मौसम परिवर्तित हो गया. एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो सीन था वो टोटली चेंज हो गया. सूरज डूब गया, तारे निकल आए. एंड मून मॉथ्स मीन एक प्रकार का कीड़ा होता है, पतंगा, जो कि लाइट चंद्रमा की रोशनी में निकल आता है, इधर उधर घूमता है, पतंगा जिसको हमने देखा है वो. एंड सिंगिंग क्रिकेट्स एंड आई. तो वहाँ पे रात में निकलने वाली पतंगे और क्रिकेट्स यानी झिंगुर, वो गाना गा रहे थे, यानी उन गाने जैसी आवाज़ आ रही थी उनके मंडराने की. एंड आई, और मैं क्या, एस आई प्रेज्ड नाइट and stars and tree that small the cherry grown by me. और मैं उन प्रशंसा कर रहा था, यानी मैंने प्रशंसा की, अप्रिशिएट किया रात को, तारों को, चेरी ट्री को. मैंने उस रात की प्रशंसा की, उन तारों की, उन चंद्रमा की, और उस पेड़ की, उस पौधे की, चेरी ट्री की प्रशंसा की. दैट स्मॉल द चेरी, जो बहुत छोटा सा पौधा था, ग्रोन बाय मी, मेरे द्वारा उगाया गया. नाउ दैट वाज द पोएम, एंड आई होप that you would have understood this poem.